Welcome back, students of BA Part 1, Government College Jaksu. Uh, uh, as you can see on your screens, I have shared the picture of Jawaharlal Nehru. In the last lecture also, I had talked about his speech on the eve of independence, that is A Tryst with Destiny, which is part of your syllabus. I had given you a brief introduction, and today I shall be doing that speech with you. I had shared the text. Here it is before you. You can see. Uh, I'll read it. I have marked the different paragraphs, and you can see that you can almost, read them as what do you say, points. They become the points of the speech that Jawaharlal Nehru made on the 14th of August. That is midnight, 14th August 1947. That was the eve of independence. I'll quickly read through a few of the words and lines, and then we'll take it from there. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. So these are very, you can say, iconic words. They are very popular. ये जो बिगनिंग है स्पीच की, ये बहुत बार कोट करी जाती है, और जो इसमें जज्बा है, जो इसमें आइडिया जवाहरलाल नेहरू शेयर कर रहे हैं, वो बहुत क्लियर है. वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम ट्रिस्ट वर्ड के ऊपर मैंने फोकस करा था और आपको बताया था, ट्रिस्ट का मतलब होता है कि एक आपका पैक्ट है, PACT पैक्ट. ओके, पैक्ट है, एक प्रॉमिस है, एक डेट है, एक you have committed yourself with destiny. What is the destiny of India? What is the future of India? And this is the time that we will have to look back at what all we have promised for the future of the nation, and we have to make sure that whatever we have promised, whatever we have dreamt about, we have to attain it in whatever way we can. We have to put in all efforts. And he very clearly says that because India is such a big country, whatever has been planned, whatever has been thought about before independence, during the independence struggle, and now when the country has finally become independent, maybe it will not be possible to attain everything very quickly. It will take time. But at the same time, he assures, or he convinces, and he hopes that up to a large extent, काफ़ी हद तक वो ये सोचते हैं कि जो कुछ भी हमने फ्यूचर के लिए सोचा है वो हम अटेन कर पाएंगे. देन ही सेज बिकॉज द टाइम व्हेन द स्पीच इज़ बीइंग मेड, दैट टाइम इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एग्जैक्टली मिडनाइट पर ये 12 बजे, रात के 12 बजे ये स्पीच दी गई थी. और बहुत ही एक स्पेशल हैं ये वर्ड्स, क्योंकि वो कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है इस समय सो रही है, रात के 12 बजे सब सो रहे हैं, लेकिन अपना देश जो है, भारत जो है, दैट अवेक्स इनटू लाइफ एंड फ्रीडम. जैसे कि कोई फूल है वो खिलता है, जैसे एक पर्टिकुलर एक बहुत ही खूबसूरत अपने राजस्थान में एक कैक्टस का पेड़ है, शायद बहुत लोगों ने देखा होगा, लंबा जाता है, उसकी हाइट बहुत ऊंची जाती है, और रात में वो फूल जो हैं सफ़ेद रंग के, बिल्कुल कमल की तरह फूल होते हैं उसके, और वो खिलते रात के टाइम है. सुबह के टाइम बंद हो जाते हैं, रात के टाइम खिलते हैं. तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा है आपके साथ. आई एम शेयरिंग इट विद यू दैट इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट फ्लावरिंग, that happens during the night. Similarly, he says that we have now come awake, we have gained freedom, and सारी दुनिया सो रही है, लेकिन भारत देश जो है that is waking up to life and it is waking up to freedom. And another thing, you can see that I have underlined these lines, they are very important, कि ये जो मौका है, ये जो टाइम है, ये जो मोमेंट्स हैं, ये बहुत रेयरली हिस्ट्री में आते हैं. दिस इज़ समथिंग स्पेशल व्हेन फ्रॉम द ओल्ड वी गेट इनटू द न्यू. पुराने को हम पीछे छोड़कर हम नए की तरफ अग्रसर होते हैं. और ये जो भारत देश है, इसका जो स्पिरिट है, इसकी जो सोल है,
इसका जो अंतरात्मा है, इसको बहुत लंबे समय तक अंग्रेज़ों ने दबा कर रखा। सप्रेस का मतलब होता है टू कर्टेल, दबा के रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ही सेज दैट फाइनली जो एक फ्रीडम है, फाइनली जो हम इस सप्रेशन से निकल के बाहर आए हैं, आज हम खुल के बोल सकते हैं, आज हम खुल के सांस ले सकते हैं। और जिस देश में हम सांस ले रहे हैं वो हमारा स्वयं का है। वी आर द ओनर्स ऑफ दिस कंट्री, वी आर नाउ फ्री फाइनली। एंड ही सेज दैट दिस इज द पॉइंट, दिस इज द solemn moment, this is that point of time where we have to promise ourselves that we will be dedicated to servicing the poorest of the poor, to provide service to the people of India, and not only the people of India, but he says to humanity at large. पूरे जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत ही संवेदनशील थे जवाहरलाल नेहरू, और वो केवल इंडिया के बारे में नहीं सोच रहे थे, वो कह रहे थे कि पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं उनके प्रति भी हमें संवेदनशील और जिसको कहते हैं काइंड होना पड़ेगा। ओनली देन, कहते हैं ना कि सबको साथ लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तब आप वो आगे बढ़ना सही मायनों में आगे बढ़ना है। एक सिर्फ एक ग्रुप को लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वो आगे बढ़ना कोई आगे बढ़ना नहीं है। सो द रियल एफर्ट इज़, द रियल काइंडनेस इज़, द रियल solidarity is, the real promise is that you will work for the whole of the humanity and also for the nation of India. Then at the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her success and failures. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of misfortunes, and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening up of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? So here you can see in the second part of his speech, he is questioning. Now you can see that this paragraph is ending on a question. So he is questioning. He is looking back also. Now he says that for India, this is a new day. This is that, point where India is again, looking forward. एक अनएंडिंग का मतलब जो हमेशा लगातार चलने वाला जो क्वेस्ट है, जो सर्च है, क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च, एंड ट्रैकलेस सेंचुरीज आर फिल्ड विद हर स्ट्राइविंग एंड द ग्रैंडियर ऑफ हर सक्सेसेस एंड फेलियर्स, बिकॉज इंडिया इज़ नॉट अ न्यू कंट्री। इंडिया ये नहीं है कि जो आज क्रिएट हुआ है, इंडिया तो कई वर्षों से, कई सेंचुरीज से इंडिया का अस्तित्व जो है वो एग्जिस्ट करता है। और इंडिया जो है इतनी पुरानी, इतनी एक ग्रैंड कंट्री है कि उसके सक्सेसेस और फेलियर्स के बारे में सब जानते हैं। एंड ही सेज दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो सक्सेस है, जो गुड है और जो बुरा है, उन सबको हमको एक साथ अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा आइडियल है, उसको हम भूल नहीं सकते। क्योंकि आप एक ध्येय बनाते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं, तभी तो आप अग्रसर होंगे आगे, तभी तो आप पथ पे आगे चलेंगे। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली वो कहते हैं कि जो हमारे आइडियल्स हैं वो हमें स्ट्रेंथ देंगे। अभी हमारी हालत जो है वो बहुत नाजुक है, अभी हमारी हालत जो है वो बहुत ख़राब है। अभी जो हमारी हालत है, हम गरीबी में डूबे हुए हैं, हम कर्जे में डूबे हुए हैं, और हमारी जो कंडीशंस हैं दे आर नॉट वेरी ideal. So he says that we will have to move forward, and we will have to move forward very strongly, very boldly. And हमारा जो कदम है, हमारा जो आइडियाज़ हैं, जो हम गेन करना चाहते हैं, अटेन करना चाहते हैं, जो हमारे आइडियल्स हैं, वो ही हमको इस सफ़र पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, हमारे को ताकत देंगे। और वो कहते हैं कि ये जो हमारा एक पीरियड है मिसफॉर्चून्स का, वो अब एक हद तक आप कह सकते हैं कि वो समाप्त हुआ, क्योंकि वी हैव अटेन्ड फ्रीडम, वी हैव बिकम फ्री, वी हैव बिकम इंडिपेंडेंट, एंड द ब्रिटिश हैव फाइनली लेफ्ट आवर कंट्री, एंड नाउ वी आर ओनर्स ऑफ आवर ओन कंट्री, एंड देयरफॉर इट इज़ टाइम टू डिस्कवर आवरसेल्व्स वंस मोर। एंड टुडे व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप what we have achieved. Now this is a major achievement, to become free after 200 years of rule. It is a major achievement. So he says that today
we are going to celebrate that freedom, but at the same time we should understand that this is just a single step. ये सिर्फ पहला कदम है. इसको हम ये नहीं समझ सकते कि हमारा जो गोल है वो लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो गया. ये तो सिर्फ लक्ष्य का एक पार्ट था. फ्रीडम गेन करना ये सिर्फ हमारे लक्ष्य का एक हिस्सा था. ये पूरा का पूरा लक्ष्य नहीं है. अभी तो और भी बहुत लक्ष्य हैं जो हमें प्राप्त करने हैं. सो ही सेज दैट दिस इज जस्ट वन स्टेप एंड दिस इज़ एन ओपनिंग अप ऑफ एन अपॉर्चुनिटी. नाउ व्हाट ही सेज कि जब हम फ्री हो गए हैं तो अब हमारे जो जिसको कहते हैं जो वो क्या कहते हैं जो सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ऊपर आ जाती है. और ये फ्रीडम जो है वो केवल एक अपॉर्चुनिटी है हमको और भी बड़े बड़े गोल्स जो हैं उनको अचीव करने के लिए. मतलब क्या है वो गोल्स? क्या हैं? टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी. वो गोल्स क्या हैं? टू रिमूव पॉवर्टी. वो गोल्स क्या हैं? टू ब्रिंग अबाउट गुड हेल्थ. वो गोल्स क्या हैं? टू बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट. वो गोल्स क्या हैं? टू बिकम प्रॉस्परस. वो गोल्स क्या हैं? हमारी जो फार्मर्स हैं उनकी जो हम एग्रीकल्चर करते हैं वो उसमें हम लोग बहुत हाइट्स पे पहुँचे. सो इतने सारे गोल्स जो हैं वो हमारे सामने खड़े हैं. ठीक है. और उन सबको हमको अचीव करना है. वी हैव टू अचीव देम. सो देर आर ग्रेटर ट्रायम्फ्स, there are greater victories that await us. This is just one step. Becoming independent, becoming free is just the first step. And then he says, he questions that are we brave enough? क्योंकि जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो आसान नहीं था. ये आप सबको पता है. कितनी जानें हमने गंवाई, कितने बड़े बड़े लोग जो हैं इसमें शहीद हो गए, कितना कुछ हमारा नुकसान हुआ. तो जो हमने पे करा, जो हमने पेमेंट करा है इस फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए वो बहुत बहुत महंगा है. दैट इज़ वी हैव पेड अ लॉट. इट्स बीन अ ह्यूज what do you say, payment that we have done to achieve this freedom. And he says that now are we wise enough to grasp this opportunity? क्या हम में इतनी समझ है? क्या हम में इतना ठहराव है? क्या हम में इतना विश्वास है कि ये जो अपॉर्चुनिटी हमको मिली है. अब वो इस फ्रीडम को क्या कह रहे हैं? वो इस फ्रीडम को कह रहे हैं कि ये मात्र एक अपॉर्चुनिटी है. ये हमारे पास एक ऑप्शन आया है कि हम जो हमारे आगे बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उनको हम अब फेस करें और अपने फ्यूचर को और भी ज़्यादा सिक्योर और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएं. लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम सब इकट्ठा होकर हम इसको एक चैलेंज की तरह लेंगे. ऐसा नहीं कि वी हैव बिकम फ्री, सो दिस इज़ आवर गोल. ऑफ कोर्स फ्रीडम वॉज वन ऑफ द गोल्स. फ्रीडम वॉज नॉट द अल्टीमेट गोल. दिस इज़ वॉट ही इज़ ट्राइंग टू से. और यहाँ से हमें पता चलता है कि नेहरू कितने ज़्यादा आशावादी थे, नेहरू कितने ज़्यादा आइडियलिस्टिक थे, नेहरू कितने ज़्यादा एम्बिशियस थे कि सिर्फ फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम में इतने सारे वर्ष उनके जीवन के गए. ठीक है. बहुत कठिनाइयाँ फेस करी. तो लोग क्या हैं कि एक मुकाम पे पहुँचते हैं तो हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाते हैं कि भाई बहुत कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, बड़ी मुश्किल से हमको ये फ्रीडम मिली है, बड़ी मुश्किल से वी हैव बिकम फ्री. सो पीपल फील दैट दिस इज़ इनफ नाउ वी कैन रेस्ट. You know, that is the natural attitude of common people. That is the natural attitude of an average person, that we have put in a lot of effort. We have lost so much. Okay, we have lost so much of life. We have lost so much of property. So much has happened. Now we should rest. Now we should take a break. But look at Nehru. He says, no, this is not the time to take a break. This is time to regenerate ourselves. This is time to, put in all our resources together once again. This is time to put in all our strengths together. This is time to bring everybody together. And as one nation, as one free nation, we have to move forward and take up more challenges and overcome those challenges. Only then we will be free in the real sense. Then we would be truly free when everybody is, up above the poverty level. Everybody is equal. Everybody is safe. Everybody has enough to eat. Everybody has enough medical facilities. Everybody has education. Only then will we become truly free. This is what Nehru is trying to say. So
I'll end here now and continue with the same idea. I hope what I have explained to you is clear. But the second half of the this speech I shall do in the next lecture. Till then, stay safe, take care, and see you soon again. Bye bye.